Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Well, we are discussing our third chapter, cyber ethics. And today in this video, we have to discuss about privacy and cyber frauds. Well, you can take this video as a revision of the previous class. In this video, first we will discuss or we will do a quick revision of all the topics that we have discussed in the previous class, and then after that we have to discuss about this term cyber fraud in detail. So now let's begin. We live in a world at a time which is often called information age, where information is freely available from any part of the world. The internet has revolutionized the world and people are getting used to having access to whatever information they want, anytime, anywhere, and from a wider and wider range of computing devices. All this has made available to us an abundance of information, but with it comes responsibility of using this information and technologies ethically. So in this chapter we will discuss about the cyber ethics related to e-commerce, intellectual property rights, digital property rights, along with some software licensing and open source movement and digital divide and some other topics. Now let's summarize this thing. Well, this world where we are living at this time is termed as information age because in this world this information is very important for us. Every time when you search something on net or web, you are looking for a piece of information. So it means the most important thing in our life is the information that we are searching by using various online platforms. And most of the time for searching this information we all are using internet only. Fine, because आज की डेट में कोई भी बुक्स या न्यूज़पेपर्स या किसी भी मैगजीन के थ्रू इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं करता है. हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग इंटरनेट के थ्रू इजीली वेरियस रिसोर्सेज पे जा करके किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. That's why this internet is mostly used, and the most important thing about the internet is that by using internet we can easily search about any topic anytime from anywhere and from a wider range of sources. It means हम लोगों को एक बहुत रिच कंटेंट मिल सकता है अगर हम लोग किसी भी टॉपिक के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो. फाइन, अब ये जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं आज हम लोगों के पास, ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल हैं ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसके थ्रू. बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क हमारे सामने आता है भाई, जितनी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्विसेज मार्केट में हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, क्या ये सारी टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज एथिकल हैं? एथिकल का मतलब होता है यहाँ पर कि वेदर वी आर सेफ फ्रॉम दिस और नॉट, और आर दीज सर्विसेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स और नॉट. Fine. So in this chapter we have to discuss about all these terms in detail. So now let's start with the first topic, that is cyber ethics for e-commerce. But इस topic को समझने से पहले we have to understand that what is e-commerce. In general, whenever we are performing any kind of buying or selling on these online platforms, then it is termed as e-commerce. Fine. Or in other words, you can say that buying or selling of goods and services over internet is termed as e-commerce. Fine. Now because we are purchasing things online, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है हम लोगों के साथ कभी कभी कि भाई हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करते हैं, जिनको परचेज करते हैं, या तो वो हम लोगों को डिलीवर नहीं होती है या फिर वो सेलर फेक सेलर होता है. फाइन. और इस वजह से बहुत सी बार कस्टमर्स जो हैं वो फूल बन जाते हैं या फिर उनको इजीली ट्रिक कर देती हैं वेबसाइट्स और उनकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेती हैं. That's why it is the biggest concern for us to safeguard ourselves and our information through these fake websites. Fine. So now we have to discuss about all these terms. So first thing that we have to discuss is privacy. सबसे important चीज है privacy. अभी privacy क्या होती है भाई? In general terms we can say that privacy means protection of personal information and given online while carrying out some online activities or ट्रांजेक्शन. फाइन. मतलब क्या हुआ भाई, प्राइवेसी का मतलब है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको हम लोगों ने ऑनलाइन शेयर करा था किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को करते टाइम, उस इंफॉर्मेशन को सेव रखना
इंट्रूडर्स से, स्कैमर्स से, अटैकर्स से। फाइन, तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइवेसी यहां पर क्या है? प्राइवेसी है हमारी इंफॉर्मेशन को अटैकर्स या हैकर्स से सेफगार्ड करना। फाइन, अब नोटिस करा होगा बेटा तुम लोगों ने, whenever we use any kind of e-commerce service or any e-commerce portal, most of the time in these portals we have to enter so many things, like we have to enter our name, mobile number, email addresses, then we have to enter our card details, fine, बैंक डिटेल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये डेटा सेफ है कि नहीं, क्या इस डेटा का कभी मिसयूज तो नहीं होगा। अगर हम लोगों को इसके बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं पहले से, तो हम लोग उस कंडीशन में उस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो वेबसाइट हमारे साथ किसी भी टाइप का स्कैम कर सकती है। फाइन, तो भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज ई कॉमर्स कंपनीज टू mention their policies properly to all the users. Fine. Now, ethically, both the buyers and sellers must provide correct information to each other. Fine. जब भी हम लोग कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पे बायर्स और सेलर्स दोनों को ही अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पेशली फ्रॉम द सेलर्स एंड, उस इंफॉर्मेशन में कोई भी हिडन पॉइंट नहीं होना चाहिए। फाइन, बिकॉज अगर ऐसा है तो वहां पर यूजर की या फिर बायर की इंफॉर्मेशन के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। फाइन, नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव सीन दैट जब भी हम लोग कभी भी किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो वो हम लोगों से कुछ सिंपल से सजेशंस पूछता है, लाइक वेदर यू वांट टू सेव योर कार्ड डिटेल्स और यू नॉट। फाइन, या फिर हम लोगों का एड्रेस सेव करने के लिए, हमारा पिन कोड सेव करने के लिए पूछता है। फाइन, अब सपोज करो अगर इनमें से कोई भी ऐसी ई कॉमर्शियल वेबसाइट हो जो इस हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे उस ट्रांजैक्शन के बाद, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस बन सकता है। फाइन, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज कंपनीज टू स्टेट देयर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली। बिकॉज अगर हम लोगों को किसी भी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस पता है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगी, हमको उनकी पॉलिसीज पता है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वहां पर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को उस अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करेंगे। फाइन, इट मीन्स हम लोग अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे और नॉर्मल चीजों को प्रोवाइड इजीली वहां पर कर देंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज कंपनीज टू स्टेट दैट वेयर और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कलेक्शन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। फाइन, now the most important factor is the privacy of the customer. फाइन, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कस्टमर की प्राइवेसी, की कस्टमर के डेटा को प्रॉपरली सेव करा जाएगा, उसका मिसयूज नहीं होगा, और उसके ट्रांजैक्शन के परफॉर्म करने के बाद उसकी किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करा जाएगा। फाइन, फॉर एग्जाम्पल there are so many websites which used to store our or save our card details, fine, or our online bank details. Fine, अब अगर यहाँ पर कोई भी सर्विस हमारी इस इंफॉर्मेशन को बाद में यूज करती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बन जाता है। Fine, that's why it is very important for all these companies to clearly state everything about these informations. Fine. Now here we have to discuss that how to safeguard user privacy. किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूजर की प्राइवेसी को कैसे सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द मर्चेंट और द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट, फाइन, अबाउट हाउ द यूजर डेटा विल बी यूज्ड इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वेबसाइट। मतलब क्या हुआ भाई, जो भी मर्चेंट है या जो भी ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज पे प्रॉपरली बता दे कि वो यूजर की इंफॉर्मेशन को कैसे, क्यों और कहां पर यूज करने वाली है। देन सेकंड पॉइंट इज द मर्चेंट और सेलर मस्ट इंश्योर दैट द यूजर हैज गॉन थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन ऑन द साइट प्रायर टू द मेकिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। जनरली यू माइट हैव सीन दैट जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, वहां पर आता है कि आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वाला ऑप्शन। फाइन, तो ये एक चेक बॉक्स है जहां पर यूजर स्टेट करता है कि हाँ, मैंने वेबसाइट की प्रॉपरली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लिया है और अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहता हूं। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मर्चेंट या फिर सेलर को या उस ऑनलाइन पोर्टल को एक बार कंफर्मेशन ले लेना चाहिए यूजर से भी, क्या यूजर को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता है। फाइन, देन नेक्स्ट, merchant must assure the user about data safety
by implementing proper data safety and security measures such as HTTPS protocol and other security mechanism that users data is safe from hackers too. फाइन, मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी वेबसाइट सिंपल HTTP प्रोटोकॉल का यूज करती है तो वहां पर इंफॉर्मेशन का लीक होना एक बहुत कॉमन इशू रहता है. दैट्स वाई जितनी भी ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं या ई कॉमर्शियल वेबसाइट्स हैं, इन सबको यूजर की डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए और डेटा सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए HTTPS जैसे सिक्योर प्रोटोकॉल्स का यूज करना चाहिए, और they must have to use all the secure mechanisms to save users information. Fine. Then our fourth point is the user must go through the terms and conditions of the seller or merchant site before providing any sensitive information. Fine. मतलब क्या हुआ भाई, हम लोगों को कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले यूजर की टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल, बहुत सारी वेबसाइट्स पर लिखा होता है कि वहां पर ऑटो रिन्यूअल्स होंगे, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन पॉइंट्स को बिना रीड करे ही कभी कभी एक्टिविटीज ऑनलाइन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर देते हैं, और फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद वापस से हमारे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो हम लोगों को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपरली पढ़ लेना चाहिए किसी भी मर्चेंट या सेलर को ब्लेम करने से पहले. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पेटीएम की बात करें तो भाई पेटीएम के टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने स्टेट कर दी हैं जिससे हम लोग अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं. और अगर कभी भी कोई बंदा उस पेज को नहीं रीड करता है तो वो उसके लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रिस्क भी बन सकता है. फाइन. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों को चेक करना चाहिए कि हम लोग जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज कर रही है कि नहीं. फाइन. अब ये HTTPS कब रिक्वायर्ड है और कब रिक्वायर्ड नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं. वेल, इफ इन केस यू आर लुकिंग समथिंग इन योर स्कूल्स वेबसाइट, तो स्कूल की वेबसाइट पे क्या हम लोग अपना आईडी और पासवर्ड टाइप कर रहे हैं बेटा? हम लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ भी. इट मींस स्कूल की वेबसाइट में डेटा सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. इट मींस स्कूल की वेबसाइट पे अगर HTTPS प्रोटोकॉल नहीं है तो देयर इज नो इश्यू फॉर अस. फाइन. बट if in case you are using any e-commercial website such as Amazon, Flipkart, or any banking site or any UPI site or any payments portal such as Paytm, Bheem, fine, or any other bank's website, तो उन सारी websites में HTTPS protocol का होना जरूरी है to maintain the security of users information. Fine. Now we have to discuss about fraud. Fine. अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राइवेसी की कि डेटा को सेव कैसे करना है. हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं. वेल, अब इंटरनेट पे फ्रॉड्स बहुत कॉमन है, और जितने भी फ्रॉड्स इंटरनेट के थ्रू होते हैं, ऑल दीज फ्रॉड्स आर टर्म्ड एज ऑनलाइन फ्रॉड्स. फाइन. दीज फ्रॉड्स आर टर्म्ड एज ऑनलाइन फ्रॉड्स, और ये फ्रॉड्स बहुत सारी तरीके से अलग अलग मेथड से होते हैं. सच एज कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे पास कभी डिलीवर नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के फोन में बहुत सारी लिंक्स आती हैं जहाँ पे हम लोगों को सस्ते सस्ते ऑफर्स दिखाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑफर पे क्लिक करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कभी भी वो प्रोडक्ट हमारे घर पर नहीं आता है. तो यहाँ पर दो लॉस हुए. पहला तो हमारी मनी का लॉस हुआ, सेकंड हमने अपनी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन लोगों को हैंडल कर दी थी. देन सेकंड, नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज. बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग कुछ ऐसी सर्विसेज को अवेल करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज से जो कंपनीज एक्चुअल में मार्केट में होती ही नहीं है. इट मीन्स वो कुछ फेक कंपनीज होती हैं जिनसे हम लोग सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं. फाइन. तो ये भी हमारी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकती हैं. देन नेक्स्ट इज स्टीलिंग इंफॉर्मेशन. कभी कभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करती हैं हमारी इंफॉर्मेशन के बिना. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट ट्रू कॉलर, तो ट्रू कॉलर क्या करता है भाई, हमारे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का बैकअप अपने पास क्रिएट कर लेता है क्लाउड पे विदाउट आर कंसर्न. हमारे एक कंसर्न के बिना, हमारी परमिशन के बिना वो क्या कर रहा है, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को रीड कर रहा है, और बाद में वो उन कॉन्टैक्ट्स का मिसयूज भी कर सकता है. फाइन. नॉट ओनली दैट, इन सम एप्स यू माइट फाइंड दैट कि दे वांट टू रीड आवर मैसेजेस आल्सो. अब इस कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे बैंकिंग मैसेजेस हैं वो आप उन मैसेजेस को भी रीड करेगी, और यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क है हमारी इंफॉर्मेशन के स्टील होने का. तो हमें हमेशा ट्रस्टेड एप्स को ही यूज करना चाहिए बेटा अपने फोन पे. देन नेक्स्ट इज फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स. कभी कभी कुछ ऐसे पेमेंट गेटवेज होते हैं जहां पे कुछ फ्रॉड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, यू विल टाइप सम अदर अमाउंट बट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा कुछ और अमाउंट. फॉर एग्जांपल, तुमने किसी XYZ वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग करी और तुमने वहां पे बिल पे करना था 500 रुपीज का, बट जब तुमने ट्रांजेक्शन करा उसके बाद तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए 5000 रुपीज एट अ टाइम. मतलब क्या हुआ,
उस वेबसाइट ने फ्रॉडुलेंट करा, फ्रॉड करा पेमेंट के टाइम पे। फाइन, सो ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के अकाउंट से मनी डिडक्ट हो जाती है लेकिन हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, सो दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ फ्रॉडुलेंट पेमेंट। वेल, while the first two types of frauds can be countered by setting up official bodies ensuring the validity of e-commerce companies and promised delivery of goods, the last two types of frauds are more frightening. Fine, मतलब क्या हुआ भाई, जो चार यहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉड्स को डिस्कस करा है, इनमें से दो फ्रॉड्स को तो हम लोग किसी भी अच्छी ई कॉमर्स कंपनी का अगर यूज कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज में प्रॉपरली बता रखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज में प्रॉपरली बता रखा है, स्टेट कर रखा है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, तो हो सकता है ये जो अबव मेंशन टू फ्रॉड्स हैं ये कभी भी ना हो। बट ये जो लास्ट वाले दोनों फ्रॉड्स हैं बेटा, ये किसी भी कंपनी के साथ या कोई भी कंपनी हमारे साथ कर सकती है कभी भी। फाइन, द एग्जाम्पल ऑफ सच फ्रॉड इंक्लूड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील हो जाती है या फिर हमारी आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील हो जाती है, या फिर कभी कभी हमारे पूरे अकाउंट को ही ये लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं। फाइन, द आइडेंटिटी थेफ्ट इज ऑल्सो वेरी स्केरी। फाइन, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है वो एक बहुत खतरनाक चीज है, साथ ही साथ जो एक आइडेंटिटी फ्रॉड है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, इट इज ऑल्सो अ वेरी स्केरी थिंग फॉर अस बिकॉज such websites can easily access all your information such as your mobile number, your government IDs, your social media accounts, your email IDs and some other things by using your password and ID that you are giving to them. हम में से बहुत से लोगों की हैबिट होती है एक कॉमन पासवर्ड को यूज करना हर एक वेबसाइट के लिए, फाइन, और एक कॉमन यूजर नेम को यूज करना हर एक वेबसाइट के लिए। और अगर इस किसी केस में तुम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने कॉमन आईडी और पासवर्ड का यूज करोगे, तो by using that common ID और password they can easily access your all the accounts. It means हम लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन खुद अपने हाथों से इनको प्रोवाइड कर दी और उसके बाद रिस्क उसका और ज्यादा बढ़ गया। फाइन, that's why we have to safeguard ourselves. अब हम लोग ये कैसे कर सकते हैं भाई? फर्स्ट, हम लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट, a monitoring official body that ensures the sanctity of e-commerce company and delivery of goods और सर्विसेज एज प्रॉमिस्ड। मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई, अगर यहाँ पर कोई भी मॉनिटरिंग बॉडी है जो क्या कर रही है, चेक कर रही है इन सारी ई कॉमर्शियल कंपनीज की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, और ये भी चेक कर रही है कि ये प्रॉपरली अपनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, a strong security mechanism by e-commerce site and payment gateways to prevent stealing of crucial information. अब यहाँ पर हमारी पेमेंट्स को बचाने के लिए, हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को बचाने के लिए यहाँ पर एक सिक्योर मैकेनिज्म होना चाहिए। लाइक एक यहाँ पर टाइम स्टैम्प होना चाहिए, HTTPS का प्रोटोकॉल होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जो सेफ गार्ड आवरसेल्फ और टू सेव आवर इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इज ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स ऑन द सेलिंग ऑफ यूजर्स डेटा टू थर्ड पार्टीज। अब अगर कोई भी वेबसाइट हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रही है, तो वहां पर प्रॉपर ऑफिशियल गाइडलाइंस या ऑफिशियल नोटिस अवेलेबल होना चाहिए। नाउ लेट्स सी इंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग खुद को सेव कर सकते हैं भाई, जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट में कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर बाय योर ओन। फाइन, मतलब क्या हुआ, कभी भी किसी लिंक पे क्लिक मत करो, मेरी वीडियोस के लिंक छोड़ करके। फाइन, कभी भी किसी लिंक पे क्लिक मत करो, हमेशा उस लिंक के URL को खुद से टाइप करके ही उस वेबसाइट को एक्सेस करो। फाइन, देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंश्योर दैट एड्रेस कंटेन्स HTTP एंड अ पैडलॉक साइन। हमेशा चेक करो कि उस एड्रेस में एक HTTP लिखा हुआ हो, या फिर जब उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वहां पर HTTPS आ रहा हो और साथ में एक लॉक का सिंबल बना हुआ हो, अगर तुम वेबसाइट से कभी भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो। फाइन, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर यू मस्ट बी एबल टू सी कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योर और यहाँ पर एक छोटा सा लॉक का सिंबल बना हुआ है। फाइन, अगर ऐसा कभी कुछ बना हुआ है, इट मींस योर वेबसाइट और योर कनेक्शन इज सिक्योर। यहाँ पर हैकिंग के चांसेस कम है। फाइन, जैसे यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों के डेटा की सिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर कभी किसी वेबसाइट में तुमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लाइक यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर वो पैडलॉक नहीं बना हुआ है, यहाँ पर वो HTTPS नहीं है,
इट मीन्स इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो वेबसाइट हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे। फाइन, लेकिन अगर यहाँ पर लॉक बना हुआ है आई की जगह पर, यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक लॉक बना हुआ है आई की जगह पर, इट मीन्स वो वेबसाइट सिक्योर है और तुम वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को इजिली शेयर कर सकते हो। ओके, so this is all for today. It was just a revision or a gist of all the topics or all the things that we have discussed earlier. Fine. In our next class, we will explore more topics about this chapter. Till then, stay healthy, stay safe, keep learning, and thank you for watching this video.